Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Oh How are God, you, it's Zainab? been so long. How are you, Shazam? I am good. I am good. How It is took Ramzan so going for long. you? It's going so well. I'm just saying that it took so long for us to collaborate as pair. Like, I know. ye dates se shift, ye date, timings, whatever, but finally it happened. It's so I nice know. to meet you. I am so happy and thank you for making time. It seems like you're doing great work out there. Thank you so much, and I'm so grateful that you joined. अब जब मुझे रासिक ने आपके बारे में सारी डिटेल्स देखी थी, I just literally went through your websites, आपकी दिल की रेसिपीज की वेबसाइट, and I saw that you're doing such great work out there. आप अपनी Instagram देख लें. I've seen your interviews. You're doing amazing, and you're talking about me. मैं आपको बताऊं ज़ैनब, दिस इज नॉट माय व्हील हाउस. ये आप लोगों का व्हील हाउस है. मुझे सिर्फ अपना काम करना आता है. ये रील्स बनाना, इंस्टाग्राम, ऑल ऑफ दैट, दिस इज completely आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन. सो इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, बट आई कीप बीइंग टोल्ड कि मुझे करना चाहिए, तो मैं कोशिश कर लेती हूँ. But you're so kind, and I'm really excited because mental health is an important thing. So रिश्ते बहुत मुश्किल होते हैं कभी कभार. So I'm glad that you are making time to talk about this. Thank you so much for joining. And I've just seen your work and the topics you've already talked upon. So I feel like this could be a really interactive session. And as अभी तो live interview चल रहा है, इसके बाद it will be shared on our page, and inshallah people can go back and see your answers, or inshallah अगर हमें time मिला, so we'll extract some clips from this, and then we'll share, and of course which will be really insightful for our audience. So are you ready? I am absolutely ready. Okay, चलिए मैं आपसे start करती हूँ. Can you, first of all, can you give me like a small brief intro about yourself to our audience that who doesn't know you? Sure, absolutely. So, Zainab, I did not start in the mental health space. I was in corporate America for many years and Pakistan. So, when I finished school, I actually worked for a few years. कोई मेंटल हेल्थ का, साइकोलॉजी का, रिलेशनशिप्स की जो एक नॉलेज होती है वो थी नहीं. और मुझे अपने काम में भी ये नजर आता था. आई वर्क टू लॉट विद ऑफ कोर्स एवरीवन, एंड स्पेसिफिकली बहुत सारे मेल क्लाइंट्स थे जब मैं एग्जीक्यूटिव कोचिंग करनी शुरू हुई कॉर्पोरेट अमेरिका में. एंड आई नोटिस्ड कि मुझे वो साइकोलॉजिकल पीस नहीं आता. इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, और हमारे कल्चर में इतनी वैसे भी नहीं होती. पीपल डोंट टॉक अबाउट काउंसलिंग और somebody needing help. The most I was exposed to was कि हमारे कल्चर में, फिल्मों में, और इवन आप कभी किसी की लड़ाई विटनेस कर लें, सो तुम्हें साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए या तुम्हें तो थेरेपी की जरूरत है, was more a ताना or a गाली or Yeah. something that somebody was doing to criticize instead of support. So I was very intrigued, and then I went back to school and pursued a PhD in that. And अब तो काफी साल हो गए हैं. It's been more than a decade, 11-12 साल से. And the practice keeps growing. और पहले my practice had a lot more Americans. अब मेरी practice predominantly South Asian population है, and not just in the US but all over the globe. And I'm very fortunate. I get to work with wonderful people, और वो मुझे chance देते हैं to help support them in their journey. वैसे तो आपने भी यहाँ पे बात की थी that how in पाकिस्तानी कल्चर या फिर साउथ एशियन कल्चर, how a lot of people think of it as गाली, that when you say कि अगर किसी से disagreement हो गई है, किसी से लड़ाई हो गई, तो आप जाके बोलो you need to go see a doctor, which is like such a big issue कि जिस तरह हमारा culture backward thinking में इस तरह आ जाता है. How this is अच्छा यही है हमारे पास कि this has been a big issue, and now since you're working with our audience now, or you've settled in this industry, what was the key issue that was there, or even if it's still there, कि क्या ऐसा point था जो आपको इतना मुश्किल लगा कि you need to overcome this? So I'll tell you कि ये issues जो है ना, ये बहुत generational हैं. So जो लोग इस वक्त अपने 20s और 30s में हैं, उनके issues different हैं from those people जो अपने 40s में हैं.
फ्रॉम दोज पीपल जो 50s और 60s में हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, पीपल इन देयर 20s एंड 30s, आपकी ऑडियंस यंगर है, तो लॉट ऑफ इश्यूज आर इंटरजेनरेशनल। जो पेरेंट्स की जनरेशन है उनको समझती नहीं है, बिकॉज ये जनरेशन बिल्कुल फर्क है। उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो सोशल मीडिया से या ऑनलाइन कनेक्टिविटी से फेमिलियर नहीं है। तो उनको लगता है कि हमारे बच्चे तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, कि ये तो सारा वक्त अपने फोनों पर होते हैं। एंड दे गेट वेरी कंसर्न्ड कि व्हाट दे डोंट रियलाइज इज दैट इज अनदर वे ऑफ कनेक्टिंग, राइट? सो वहां से इश्यूज निकलते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में इश्यूज बहुत सारे निकलते हैं, फाइंडिंग द राइट पार्टनर। अब लड़कियों का जो एक रोल है, जो हमारा साउथ एशियन ट्रेडिशनल रोल है, वो चेंज हो रहा है। सो व्हेन दीज गर्ल्स लॉन्च इन करियर्स और उसके बाद उनकी शादियां होती हैं, बोथ कपल्स स्ट्रगल विद द रोल कंफ्यूजन कि अच्छी Yeah. बीवी क्या है, अच्छा हस्बैंड क्या है, घर में हेल्प करनी है कि नहीं करनी है, कितना फाइनेंसेस और पैसों को किस तरह मैनेज करना है। सो ऑल ऑफ दोज रिलेशनल इश्यूज, इन लॉज के साथ रिलेशनशिप कैसे मैनेज करनी है, रिश्तेदारों के साथ रिलेशनशिप कैसे मैनेज करनी है। जो ओल्डर लोग हैं, जो 40s में हैं इस वक्त, दे आर इन दैट क्रॉस ब्रीड, राइट? तो उनके इश्यूज, उनकी मच्योर रिलेशनशिप्स होती हैं, उस रिलेशनशिप को हेल्दी कैसे रखें। नॉवल्टी न्यूली वेड्स की जब खत्म हो जाती है, उनकी रिलेशनशिप मच्योर, उसको एक्साइटिंग कैसे रखें। और इतनी अब बिकॉज ऑफ एक्सेस अलग किस्म के इश्यूज रिलेशनशिप्स के हवाले से चेंज हो रहे हैं। सो इनफिडेलिटी हैज बिकम अ बिगर इशू देन इट वाज Yes. बिफोर, बिकॉज अब लोगों के पास एक्सेस बहुत है, आपके पास चॉइसेस हैं। पहले तो होता था कि आपके पास एक ही दो लोग होते थे, तो द चांसेस ऑफ दोज थिंग्स आर लोअर। जो मच्योर ओवर 50 हैं, फाइंडिंग मीनिंग इन लाइफ, अंडरस्टैंडिंग कि अब मेरी यूज क्या होगी, मेरा नेक्स्ट चैप्टर कैसा है। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर रिलेशनली ड्रिवन। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आप उसमें मेंटल हेल्थ इश्यू डाल लें, किसी को डिप्रेशन है, किसी एंजाइटी है, कोई किसी मेंटल इलनेस से स्ट्रगल कर रहा है, किसी फैमिली में स्पेशल नीड्स बच्चा है जिसकी कांस्टेंट जरूरत है, और वो अडल्ट लाइफ में भी किसी के यहाँ इलनेस है, किसी के यहाँ डेथ है, money is a big problem. So I can give you a long list of things that are real challenges that people go through. और हमें परमिशन नहीं होती कि हम इनकी बात करें, बिकॉज मीडिया की बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं, बट एक जो लिमिटेशन है कि हम अपना ग्लोरिफाइड वर्जन प्रेजेंट करते हैं सोशल मीडिया पे। Yes. तो जो फ्लॉड साइड्स होती हैं वो इतनी दिखती नहीं है। That's so true. And वही होता है surface पे कि everything is perfect, perfect. कि nothing is going back, while we don't know, the audience doesn't know कि ये जो issues है, कि कुछ होता है ना population वहाँ पे, एक certain division of audience, they don't know that this is even an issue. They're like कि it's just a problem we have to overcome. ये नहीं है कि एक प्रॉपर इशू की तरह उसे देख रहे हैं वो, कि या दिस कुड बी ओवरकम। यही है कि हमारे कल्चर में है कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद दिस, तो ये बहुत आ जाता है। एब्सोल्युटली। और फिर एक और चीज जो आपकी जनरेशन और ओल्डर जनरेशन में डिफरेंट है, विच इज सैड एक्चुअली, कि जो ओल्डर जनरेशन है ना, जो 50s 60s 70s में लोग हैं, उनको लगता है कि टफ अप होना बहुत बड़ी चीज है, कि हम तो इतने स्ट्रांग थे, और इन बच्चों को तो हर चीज पे मेरा थेरेपिस्ट, मेरा थेरेपिस्ट। आई गेट टू हियर दिस अ लॉट फ्रॉम द पेरेंट्स जनरेशन, बिकॉज मैं कोई सैंडविच हूँ बीच में, कि दे डोंट थिंक इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। एंड एक्चुअली अगर आप देखें इस हवाले से, तो इट्स सच अ ग्रेट, मैं तो एडमायर करती हूँ आपकी जनरेशन को, कि आप लोग इतना फ्रीली बात करते हैं इस चीज के बारे में कि यार ये मसला हो रहा है। आई एम लाइक वाओ, दिस इज सो अमेजिंग। आई विश मुझे ये पता होता व्हेन आई वाज 20 years old कि आई कुड एक्चुअली टॉक अबाउट माय इश्यूज, बिकॉज दर्द बांटने से कम होता है। व्हेन यू टॉक अबाउट इश्यूज, दैट यू इज टॉक सो अबाउट ट्रू। चैलेंजेस, यू लर्न। सो आई वुड लव यस। जैनब कि आप मुझे बताएं, आपको अपनी ऑडियंस के, उनके एज ग्रुप के हवाले से क्या चीजें हैं जो आपको नजर आ रही हैं वहां पे, दैट यू फील कंफ्यूज्ड अबाउट के, और स्पेशली पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहां रिसोर्सेज थोड़ी सी कम है। सो आई वुड लव टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। आई थिंक हमारा जो बिगेस्ट इशू है ना, कि सिंस वी आर इन दैट फेज जहाँ पे वी हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, एंड अब वी हैव स्टेप्ड इनटू दैट you can say exposure, कि people are looking forward to when are they going to marry, कि what is going on with their partner वाली significant other, do you have a significant other,
वो वाली चीज़ आ रही है हम पे. तो a lot of people are chasing वही just for the sake of just getting a marriage, for the sake of ये ताने रुक जाएं, just get married to any person. ये है कि इतना वो डीपली नहीं देख रहे पेरेंट्स भी. इस तरह अगर हम अपनी बात करें हमारे पेरेंट्स के, दे आर नॉट डीपली लुकिंग इनटू कि लड़का अच्छा है या नहीं अच्छा. वो है कि सोसाइटी से प्रेशर होता है कि नहीं, जस्ट गेट देम मैरिज, जस्ट गेट देम, उनको अपने घर का करो. तो ये वाली चीज़ बहुत आ जाती है कि वही है कि एज लॉन्ग एज कि अभी तक बेटी घर पे बैठी हुई है. तो आई वुड थिंक कि मैरिज वाला इशू वी आर स्टिल टैकलिंग दैट, कि हाउ डू वी stop this, or how do we bring a change. I don't know the blanket words for this, but वही कि हम अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएं. Wonderful, and I'm so grateful that you're bringing this up because मैं आपको बताऊं दो तीन चीजें कहूंगी. आपकी जितनी फीमेल ऑडियंस है जो इस चीज से स्ट्रगल कर रही है उनके लिए माय मैसेज इज कि you have to know कि दुनिया में, and I'm not saying, I'm very proud of it, women are now surpassing men in being qualified and more educated. कॉलेज से जो graduating students हैं उसमें लड़कियां ज्यादा हैं, लड़कियां ज्यादा क्वालिफाइड हो रही हैं. एंड फाइनर्स, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है लड़कियों का, ये ग्लोबल मसला है. अमेरिका में ये बहुत बड़ा मसला है कि लड़कियां पढ़ जाती हैं बट उनको अपना मैच नहीं मिलता. एंड वन मोर थिंग आई टेल द गर्ल्स, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम कि वो सेटल नहीं हो रही बिकॉज ये बहुत Yeah. बड़ा बड़ा कमिटमेंट है. इट्स वन रिलेशनशिप दैट कैन रियली इम्पैक्ट योर लाइफ इन सो मेनी वेज. सो ये सोच समझ के करना, और अगर ना करना तो वो आप बैल मुझे मार वाली सिचुएशन है. बिकॉज द ओनली एक्साइटिंग थिंग अबाउट दैट पार्ट इज द वेडिंग सेरेमोनीज, कि मेहंदी पे Yeah. बड़ा मजा आएगा और शादी पे बड़ा मजा आएगा और दुल्हन बनेंगे और डांसेस होंगे. लेकिन उसके बाद जो चैप्टर होता है ना वो बहुत स्कैरी होता है अगर आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है. Exactly. Can I add to the fact that our generation, देखिए अब तो हमारी generation is all social media, all reels. We will find the Gen Zs up on social media more than anybody else. तो हमारी Absolutely. उसमें देखता है कि शादी को एज अ जोक भी बना लिया है कि we see reels coming up जिसमें the girl is like oh I just want to marry for the clothes, for the all the binge वगैरह, and then realizing oh you have to go to another home. And I'm like, girl. Absolutely, you said it so well, Zainab. मैं आपको बताऊं अमेरिका में क्या ट्रेंड है, एक बड़ा क्यूट ट्रेंड है कॉलेजेस में. साउथ एशियन आपके जो जेन जी पॉपुलेशन है उसमें जो ट्रेंड है, इट्स कॉल्ड मॉक मेहंदी एंड मॉक शादी. तो जो स्टूडेंट एसोसिएशंस है ना, दे एक्चुअली होस्ट दीज इवेंट्स जहाँ पे एक फेक दूल्हा और एक फेक दुल्हन होती है एंड दे हैव अ पार्टी. वो उनकी मेहंदियां, उनके डांसेस, ऑल द फन पार्ट, एंड देन एवरीबॉडी गोज होम. ना कि ये कि आप वो प्रॉब्लम अपने घर लाएं जहाँ पे कंपैटिबिलिटी इशू है, पैसे हैं नहीं, पेरेंट्स के साथ रहना पड़ रहा है, शेयर्ड स्पेस में लड़ाइयाँ हो रही हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड आई फील दैट I feel for you guys because you have a parent generation जिनको ये बात नहीं समझ में आती. तो उनका क्राइटेरिया नहीं बदला है अभी. उनको लगता Hmm. है कि बस अब आप ट्वेंटीज में हैं और थर्टीज में पहुंच गई तो आप बॉटम शेल्फ हो रही हैं. That's आपको तो शादी करनी, और फिर आपकी रिप्रोडक्शन, दैट्स अनदर क्लॉक टिकिंग, yeah. राइट, कि बच्चे कैसे होंगे. सो आई एम That's ग्लैड यू ब्रॉट इट अप. आई एम and ग्लैड यू ब्रॉट इट अप. I'm just gonna add this up. You just mentioned that this is happening overseas. I'll just had mention ये वाला point कि in our Lahore का school lums, if वहाँ पे we had this happening. क्योंकि 2-3 साल पहले it happened कि batch शादी, if I'm right about this the word, but it was batch शादी. And it literally was such a new thing कि people were like कि oh we can just do this celebration, and इस तरह खत्म हो गया. It got so viral कि people were like yeah हमें भी करना चाहिए. Like other university के students were literally craving कि काश हमारी university में होता. It is इट्स all सो over. It's so fun. और फिर आप but I really admire your generation कि आप लोग सोच रहे हैं इस बारे में. That means कि आप अपने lessons around देख रहे हैं. One of the things that's really high right now, and I'm sure you've noticed, and the numbers are higher in Pakistan than the population of Pakistanis, Indians who live in the US.
divorce rates बहुत बढ़ रहे हैं. And part of the reason is, so, and I want people to look at them differently because divorce is also a solution sometimes. कि वो बढ़ से रहे हैं, a lot of the times people are not being thoughtful on partner selection. वो wedding पे इतनी focus है कि marriage को कोई notice नहीं कर रहा. And there's a huge difference between focusing on a wedding and focusing on a marriage. Very different criteria. That is so important. Just the two words highlighting that the words are different, wedding and a marriage, is so, so important. And there could be a whole debate on this, to be honest. Okay, how our generation, yeah, a big group of people do not understand it. They're just like, yeah, I had my wedding, vagera, like, and then we asked them, okay, oh, how's your marriage going? And they're like, not as fancy as how the wedding went. And I'm like, hmm, let's, if I have not stepped into that footsteps, मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकती इस बारे में. मैं किस उस लिहाज से बोलूँ when I have not gone through that. No, absolutely. And, I am glad that people are actually talking about it because देखें tools भी नहीं होते हैं ना a lot of times. And I want to include the men as well because ये बहुत एक important चीज़ है that we invest in mental health and support for men. लड़कों का आदमियों का भी role change हो रहा है. What women expect from them now is very different, right? So it's पहले होता था कि बस ये अच्छी तनख्वाह है तो we'll tolerate everything because इकोनॉमिक डिपेंडेंस थी. अब लड़कियां अपने पैसे खुद भी बना रही हैं तो खुद उनको काम बेटर करते हैं. ट्रीटमेंट चाहिए. सो बेचारे लड़के भी बहुत कंफ्यूज्ड हैं इन टर्म्स ऑफ देयर रोल कि अब उन्होंने करना क्या है. मॉम कह रही है कि ऐसे होना चाहिए और वाइफ कह रही है कि ऐसे होना चाहिए. सो दे आर वेरी सैंडविच्ड between these two women in their lives कि Right. उनकी अपनी जो टीम है घर की वो कुछ और बोल रही होती है, उनके ख्यालात डिफरेंट होते हैं. उनकी वाइफ जो गर्लफ्रेंड थी तो चीजें डिफरेंट थी, अब वाइफ हो गई है तो there's a confusion in that role as well. There is a big confusion. अब ये वाली चीज़ भी आ जाती है. इन many households की एक डायनामिक होता है जहाँ पे वो सिंगल पेरेंट वाला एक इशू हो जाता है कि जहाँ पे एक पेरेंट होता है, मेनली फादर्स. इफ आई टेक माई सिचुएशन एट हैंड, तो फादर्स आर वेरी डिस्टेंट और mothers have taken whole both parents का role कि they're gonna perform as a father, they're gonna perform as a mother, and it gets very यू कैन से माइक्रो मैनेजिंग वाला सिचुएशन हो जाता है कि मम्मा सर पे खड़ी होती है, मम्मा ने ये बोला, मम्मा ने बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी. कि हाउ डू यू थिंक दिस अफेक्ट्स द चाइल्ड्स डेवलपमेंट एंड क्या एक आइडियल बैलेंस हो सकता है इसमें? Absolutely. And this is such an important thing. A lot of times घर में बच्चों को पालने की जिम्मेदारी is biased towards mothers. और मैं बताऊंगी कि इतने इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं बिकॉज आदमी फादर एंड देयर इज सो मच साइकोलॉजिकल रिसर्च कि जो इन्वॉल्व फादर्स होते हैं उनकी बेटियों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हायर होता है. बट हमारे कल्चर में ज्यादातर एंड नॉट बिकॉज दे डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व्ड, उनको ये पता होता है कि जी ये तो अम्मी का काम है, मेरी वाइफ का काम है. And they shortchange themselves because a lot of times in households में फादर इज द वन जो बाहर काम कर रहे हैं तो उनका जो विजडम है और इस एक्सपोजर है वो इतना बड़ा होता है कि अगर वो बच्चों के साथ शेयर करें तो बच्चे इतना सीख सकते हैं. एंड मॉम समटाइम्स इज लिमिटेड बिकॉज वो घर में बेस्ड होती हैं. सो ये बड़ा डिसएडवांटेज है. सो देर आर 2-3 थिंग्स आई वुड लाइक टू से टू young women and men जहाँ पे distant fathers हैं. First, you have to give them benefit of the doubt. देखें हर relationship फर्क होती है, हर घर फर्क होता है. You want to make sure that culturally you understand कि ये बहुत एक loyalty है जो अब हमें serve नहीं कर रही है कि अब्बा को distance रहना. So I understand and I don't want anyone to think and villainize the father because उनको पता ही नहीं है, unintentionally वो नहीं करते, ये उनको मालूम ही नहीं है कि ये भी एक चीज होती है जो वो कर सकते हैं. The second thing I would encourage your generation is go talk to them. उनसे कहें कि I want you to be more involved. उनको ये language आती ही नहीं है because जो आपके father की, आपके age group के fathers की age जो है ना, when they were getting raised, the rule of the game was कि बच्चों को तो चुप होना चाहिए, जवाब ना दो तो you're a good kid.
अगर आर्ग्यू कर लो तो you're a bad kid, कुछ That is कंप्लेन कर so लो तो it's true. बदतमीजी. So you know those labels are quite interesting कि अगर जवाब दें, even though आप normal tone पे बात कर रहे हैं, it will be taken as disrespect. तो वो Yes. इज्जत और respect और अम्मी को जवाब could be very reasonable. So ये जो Hmm. cultural loyalties है ना, ये बहुत जरूरी हैं कि parents और बच्चे डिस्कस करें कि देखें हम डिप्राइव हो रहे हैं ऑफ सो मच विजडम यू कुड शेयर विद अस. Hmm. प्यार मोहब्बत तो सेकंड चीज है. सो आई वुड लव फॉर सम ऑफ यू टू बी ब्रेव एंड ट्राई इट आउट. गो टॉक टू योर पेरेंट्स एंड से आई वांट मोर क्लोजनेस, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे सो दिस इज. एंड ये कल्चरल लॉयल्टी है जैनब. इतने फादर्स जिनसे मेरी बात हुई है वो रिपोर्ट करते हैं कि दे रिग्रेट not being able to talk to their kids when they were younger. They just That didn't know any better. That is so true. ये वाला फैक्टर बहुत आ जाता है कि पेरेंट्स आर लाइक कि डू नॉट टॉक बैक टू अस. लाइक एक उन्होंने एक स्टेटमेंट या फिर सेंटेंस बोल दिया, नाउ यू हैव टू रिप्लाई टू देम या फिर कुछ बोलो तो दैट इज लाइक कि तुम तो जवाब देने लग गए हो, विच इज़ लाइक सच अ बिग इशू कि यू कैन नॉट इवन टॉक बैक या फिर I'm not using the word talk back. Like you cannot even answer them back without it being like कि तुम मुझे जवाब दे रहे हो, तुम तो अब किस तरह के हो गए, अब तुम जवाब देने लग गए हो. It's such a big issue, and then they Absolutely. don't understand. बिल्कुल. आपके एक व्यूअर का बड़ा अच्छा फीडबैक आया है कि उर्दू में ज्यादा बात करें, तो आई वांट टू टॉक इन उर्दू मोर. Okay. कि बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी चीज है कि हम अपनी कल्चरल लॉयल्टीज जो है ना, इन चीजों पे इज्जत एक आ जाती है. बड़ों से बात करने की, जवाब देना, तो वो कंसिडर किया जाता है कि बदतमीजी है. तो Hmm. उसका जो एक सोल्यूशन मैं स्लाइड इन कर रही हूँ, बिकॉज आई वांट कि जो भी आपकी ये पॉडकास्ट सुने उसको थोड़ा बहुत कुछ रिलीफ मिले. तो एक ट्रिक ये होती है कि जिस वक्त बात हो रही है और जिस वक्त आपके अम्मी अब्बा आपको लेक्चर दे रहे हैं किसी बात पे, उनकी स्पीच चल रही है, उस वक्त बात ना करें आप. उस वक्त आप सिर्फ चुप Hmm. रहें. 15 मिनट बाद आप जाएं और आप अपनी सारी बातें कर दें. तो उसमें जब गैप आ जाता है ना, तो आपने उनकी बात भी रख ली कि भाई जवाब नहीं दिया, बिकॉज उनको लगता है कि उनको जवाब दे दिया तो पहाड़ टूट गया है. अब तो बदतमीजी, हमने पता नहीं किस तरह की लड़की पाली है कि वो हमें इस तरह उर्दू में कहते हैं जबान चलाना. सो बच्चे जो Yes. जबान चलाते हैं वो उनको नहीं पसंद आते. सो यू Hmm. वांट टू टेक अ ब्रेक. 15-20 मिनट बाद आप जाएं और आप उसी मुद्दे पर उनसे बात कर सकते हैं कि देखें, Hmm. मैंने आपकी बात सुनी, अब आप मेरी बात सुने. सो ये That बहुत is जरूरी such है. a genius life hack. You know, how did you discover it? I How did I you was born and discover this I life? was born and raised in Pakistan, and so मैंने भी अपनी हिस्से की डांटें खाई हैं और बहुत सारी. और तो ये बहुत अच्छी ट्रिक होती है कि आप उस वक्त बात ना करें. एंड आई वुड लव टू शेयर दोज, बिकॉज देखें, घर में सबसे ज्यादा आप इम्पैक्ट हो रहे हैं. जितना भी अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं जब यूथ से बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि a lot of times वो escape कर रहे होते हैं, because अम्मी अबू से बात करना तो अपना सर मारना है दीवार पे. So just learn the trick. learn कि उनसे बात करनी किस तरह है. या तो Hmm. हम इसके बारे में सैड हो जाएं या हम सोल्यूशन ढूंढ लें. तो आपने क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढना है कि बात तो करनी बहुत जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दैट कम्युनिकेशन, बिकॉज देखिए, आपकी सबसे बड़ी ऑडियंस है. अब आपके माशाल्लाह इतने फॉलोअर्स हैं इस प्लेटफॉर्म के. लेकिन आपकी जो सबसे बड़ी ऑडियंस होगी ना, वो होंगे आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, आपके क्लोज फैमिली फ्रेंड्स. जब तारीफ उनसे मिलती है ना, तो उसकी वॉल्यूम ही Yeah, डिफरेंट होती है. that is so तो true. बहुत सोचना बहुत जरूरी है. That is so true. You know वही होता है कि I'm just answering back to जो आपने last part बोला कि जब कुछ करो और फिर आके मैं ना भागते हुए मम्मा के पास आती हूँ, मम्मा look I did this, look I did all that, this achievement ये मेरी है. एंड देन शी डज नॉट, उन्हें पता नहीं है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, वो बस बोलती हैं कि शाबाश. और वही शाबाश इतना इम्पोर्टेंट होता है कि अगर कोई स्ट्रेंजर या फिर कुछ कोई और बोल देता, इतना मीनिंगफुल नहीं होता जितना माँ बाप ने बोला. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. मेरी बेटी है, एंड अब यहाँ पे बहुत चीजें चेंज हो गई हैं, राइट. तो मेरी बेटी 18 साल की है, तो वो भी यही करती है कि कॉलेज में कुछ हुआ तो मुझे पूरी
उसकी रुदात मिलती है, और फिर कभी कभार वो मुझसे पूछती है, मॉम यू हैव नो आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? और एंड आई एम लुकिंग एट हर, मैं कह रही होती हूँ, राइट, मुझे कुछ नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। एंड बट वो मुझे यही कहती है कि बहुत जरूरी था कि यू टोल्ड मी, गुड जॉब, बिकॉज चाहे पता हो ना हो, एंड आप बहुत लकी हैं कि आपकी मॉम ऐसी हैं कि वो बोल देती हैं, यू नो, इट्स अ अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब यही होता है कि अब कुछ होता है कि इफ़ आई कंसिडर मैरिजेस के ऊपर ही हम पहले बात कर रहे थे ना, बिफोर इट मूव टू इट द जेन ज़ी जनरेशन। तो होता है कुछ लोग हु आर यू नो स्टक इन डिफिकल्ट मैरिजेस, तो उसमें वो बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट वुमेन, आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन की तरह से, कि पीपल वुमेन हु आर अनहैप्पी या फिर हु फील ऐसे जैसे ट्रैप्ड इन अ डिफिकल्ट मैरिज, वही सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है कि डिवोर्स नहीं लो, यू नो कॉम्प्रोमाइज़ अपने हस्बैंड से बात वगैरह कर लो, जस्ट कॉम्प्रोमाइज़ और just keep your marriage, which is a really big issue. So how do you think what advice would you give to इस तरह की women, especially उन खवातीन के लिए जिनकी औलाद होती है? दैट इज सच अ गुड टॉपिक, एंड आई अप्रिशिएट कि आप इस टॉपिक को पॉइंट आउट कर रही हैं। सो आपके, क्योंकि मैरिज इज माय स्पेशलिटी, आई वांट टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इट। मैंने जो नोटिस किया है पाकिस्तान से, जो मुझे फीडबैक मिलती है, इट्स एक्चुअली बहुत अनफॉर्चुनेट होती है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि क्राइटेरिया क्या होता है शादी पर गिव अप करने का। तो मैं तीन चीजें कहूंगी उन लड़कियों से और उन लड़कों से भी जो इस चीज से गुजर रहे हैं, कि सबसे पहले आपने लिस्ट बनानी है कि आपके एक्चुअल इश्यूज क्या हैं। इश्यूज जो हैं वो मेजर इश्यूज हैं या माइनर इश्यूज हैं, और मैं बताती हूँ कि मेजर और माइनर आपको किस तरह पता चलेंगे। अ लॉट ऑफ टाइम्स आपका सबसे पहला मेरा रिकमेंडेशन है कि आप डिफरेंशिएट करें कि ये इश्यूज सोशली ड्रिवन है या पर्सनली ड्रिवन है। सोशली ड्रिवन का मतलब यह है, ओ मेरे हस्बैंड मुझे बाहर नहीं लेकर जाते, मेरे हस्बैंड मुझे ईद पे कपड़े नहीं दिलाते, मेरे हस्बैंड मुझे दावतों में या फ्रेंड्स के साथ घूमना, या एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को समझें कि ये क्या है, क्या क्राइटेरिया है जो आप यूज कर रहे हैं इन कंसिडरिंग कि आपको डिवोर्स लेनी है। द सेकंड थिंग, बिकॉज बड़े इश्यूज मैं दो या तीन ही बताऊंगी जिनसे यू मे वांट टू कंसिडर कि शायद जाना पड़े। वन इज फिजिकल अब्यूज। अगर हाथ उठ रहा है बार बार, यू वांट टू डेफिनेटली कंसिडर कि ये अगर अनसेफ एनवायरनमेंट। अच्छा, फिजिकल अब्यूज पे बता दूं कि मैं हाई कॉन्फ्लिक्ट मैरिज की बात नहीं कर रही, और मैं आपको डिफरेंस बताना चाहती हूँ, बिकॉज पाकिस्तान में Sorry, बहुत what do you mean? बहुत कम लोगों को इन्फॉर्म। सो मैं बताती हूँ, हाई कॉन्फ्लिक्ट डिवोर्स, हाई कॉन्फ्लिक्ट मैरिज क्या होती है, जहां पे कपल्स के झगड़े बहुत होते हैं। दैट मे और मे नॉट बी एन अब्यूसिव रिलेशनशिप। जब आप वर्ड अब्यूज यूज करते हैं ना, बिकॉज इस वक्त हर वक्त मेंटल हेल्थ की दुनिया में एक ट्रेंडी वर्ड होता है, अब्यूज इस वक्त बहुत पॉपुलर वर्ड है, लेकिन लोग समझते नहीं है अब्यूज होती क्या है। सो अगर लड़ाइयां इस तरह की हो रही हैं कि आपने एक रिमोट मारा अपने हस्बैंड पे, उसने उठा के चप्पल मार दी, आपने उसको थप्पड़ मारा, उसने आपको थप्पड़ मारा, दैट्स अ हाई कॉन्फ्लिक्ट मैरिज, जहां पे दोनों ही एक सॉर्ट ऑफ अब्यूज में एंगेज्ड हैं, राइट? जो अब्यूसिव रिलेशनशिप होती है, ट्रू अब्यूसिव रिलेशनशिप, वहां पे पावर डायनामिक शिफ्ट होता है। वहां पे somebody has power and he is scared. somebody is scared कि अब गुस्सा आएगा तो क्या होगा, चीजें टूटेंगी, कितना डर लगेगा, बच्चे सहमे हुए हैं, वाइफ सहमी हुई है, एंड वेरी फ्यू केसेस हस्बैंड्स भी। सो दैट इज समथिंग यू वांट टू कंसिडर। अगर कोई परपेचुअल इनफिडेलिटी है, परपेचुअल इनफिडेलिटी और वन टाइम इनफिडेलिटी में बहुत फर्क होता है, कि आपका एक सिचुएशन हुआ और आपके पार्टनर ने रिमोर्स, और लड़कियां भी और लड़के भी, उन्होंने रिग्रेट शो की, वो वाकई में इस चीज पे काम करना चाहते हैं, डिफरेंट फ्रॉम कि ये हर दूसरे हफ्ते हो रहा है कि कोई नया बंदा पर्सन आ रहा है लाइफ में, या पर्सन आ रही है लाइफ में।
वो जो परपेचुअल है वो एक चीज होती है. सो ये बहुत कम इस तरह के इश्यूज होते हैं जो बिल्कुल होता है कि जी डायरेक्ट ट्रैक है कि आप मैरिज को एग्जिट करें. मोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टफ कैन बी वर्कड ऑन. शादियों पे बहुत डेफिनेटली. जरूरी है. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ थोड़ा सा मेल फीमेल पाकिस्तान में डायनामिक फर्क है. और शादी को समटाइम्स समझा जाता है कि एक पीस ऑफ पेपर आपने साइन कर लिया है तो आपने साइन कर लिया है कि यू कैन टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड. कि अब जो है ना, मेरी ये नीड है, जाओ नहीं करता. तो अब इसका तो कोई जवाब नहीं होता ना. अगर आप 12 year old की तरह बिहेव कर रहे हैं अपनी शादी में, तो यू नो अ रीजनेबल पर्सन विल नॉट बिहेव दिस वे. सो कॉन्वर्सेशंस, काउंसलिंग बहुत काम आएगी. लड़कियां, जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा कि बच्चा है अगर और आपकी शादी मुश्किल है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एंड आई नो कि ये साउंड तो नहीं करती ग्रेट, कि आपने देखना है आप इकोनॉमिकली कितनी इंडिपेंडेंट हैं. आप कमा सकती हैं. आर यू एबल टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फाइनेंशियली? और अगर इसका जवाब ना है तो यू वांट टू रियली थिंक ट्वाइस कि आप अपने लिए और कितने मसले क्रिएट कर रही हैं बाय एग्जिटिंग. सो इफ योर मैरिज इज फिजिकली सेफ और आप ब्लैक एंड ब्लू पटाइयां और ये सब नहीं हो रहा है, देन यू मे वांना consider staying longer till you can be financially independent. Because ये step financial independence और फिर आपकी family की backing क्या है, अगर वहां पे financial vulnerability है तो आप और challenges में जा रही हैं जो different हैं. So आप मुझे बताएं, मैं break लूंगी because there's so much here, कि कोई सवाल, कोई feeling, कोई thought आ रही है इस वक्त जब आपने ये सुना Yes, मुझसे. I want to add in the fact कि जब ये पहला वाला पार्ट when you were talking, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि वो एक वुमेन पे, आई एम नॉट इन्वॉल्विंग अभी यहाँ पे बच्चे, बट वो होता है कि जब हम निकाह पे जा रहे होते हैं, जब यहाँ पे हमारा निकाह हो रहा होता है, तो एक हमारे पास एक राइट होता है खवातीन का, वो कार्ड देता है कि आपके पास राइट है कि आप खुद से डिवोर्स ले सकते हो. तलाक की एनी ऑफ right, द, yes. यस, वो हमारे पेपर से हटा देता है. लेकिन वो एक जनरेशन से होता हुआ आ रहा है कि उन्हें लगता है कि इट्स नॉट सही, ये सही नहीं है कि ये पेपर पे रिटन भी हो भी या नहीं हो. और ये ना तो पेरेंट्स वगैरह करते हैं, जो हमारे वो होता है जो निकाह पढ़वाते हैं, वो भी हमारा वो जो कार्ड देते हैं काजी बाकायदा. काजी होते हैं, काजी भी बिल्कुल. बाकायदा काट देता है. और फिर क्योंकि मेरी ये फ्रेंड्स के केसेस भी इस तरह हुए हैं, दे कम फॉरवर्ड कि उन्होंने फिर काजी से पूछा आपने काटा क्यों, ये मैं अपना भरवाना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं अपने राइट्स लिखना चाह रही हूँ, अपने हुकूक लिखना चाह रही हूँ. तो उस पे शी हैड लाइक अ लॉट ऑफ बैकलैश कि ओ माय गॉड शी इज सच अ वो लिबरल वुमेन दैट उसे अपनी राइट्स चाहिए. एंड आई वाज सो शॉक्ड कि ये तो एक हमारा बेसिक राइट है कि हम अपनी चूज कर सकते हैं कि हमारे क्या हुकूक होना चाहिए, क्या हमारी शराइत होनी चाहिए एक मैरिज में, बट वो भी हमसे छीन लिया जाता है. ये बहुत जरूरी चीज है, एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने इसको पॉइंट आउट किया है. ये मैं बहुत देखती हूँ, बिकॉज रिमेम्बर आपके रिलीजन ने आपको ये राइट दी है. इट्स रियली एग्जैक्टली. इम्पोर्टेंट कि आप ये राइट प्रोटेक्ट करें. और ये चीज आप निकाह वाले दिन मत उठाएं. आप अपना निकाह नामा रिव्यू करें एक हफ्ते पहले, 8 दिन पहले, कि मुझे ये डॉक्यूमेंट, एंड दिस इज द डॉक्यूमेंट जो मैं साइन करूंगी. In that same vein, I want to tell women and men कि जब आपकी लड़ाई हो, प्लीज लड़ाइयों में डिवोर्स की थ्रेट ना दें. देयर इज अ मिडिल ग्राउंड. हर लड़ाई का एंड या हर लड़ाई में डिवोर्स की धमकी मीन्स आप अपनी रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं. बीच में बहुत मिडिल ग्राउंड होता है. आप कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारी ये बात बहुत बुरी लगी, मैं बहुत हर्ट हूं, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम इस तरह बिहेव कर रहे हो या बिहेव कर रही हो. बट हर कॉन्वर्सेशन की एंड जो है एक एग्जिट थ्रेट नहीं हो सकती. नहीं इट्स हो वेरी सकती. इंपॉर्टेंट कि आप दोनों इस चीज को समझें. एंड एब्सोल्युटली ये राइट बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, बिकॉज वहां पे कल्चरली बहुत लड़कियों के साथ ज्यादतियां होती हैं. तो ये आपके पास एक प्रोटेक्शन है जो आपके फेथ ने आपको दिया है. आप इसको यूज करें. आपके लेकिन रिलीजन ने दिया, इवन दो यू आर बीइंग सप्रेस्ड बाय आवर कल्चर, कि लोग क्या सोचेंगे तुमने अपने निकाह नामे पे अपनी शराइत लिखी, एक मैरिज पे तुमने अपनी शराइत कैसे लिखी. तो ये कल्चरली हमें सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, बट ये हमारे एक हुकूक है
एंड वी शुड लिखना चाहिए हमें इस तरह. वी शुड नॉट लेट द पीपल टेक ओवर योर राइट ऑफ योर ओन मैरिज. Absolutely, and I'm glad that you're bringing it up. और ये बहुत ज़रूरी है और मैं लड़कों से भी कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि आप भी, the boys should be advocating for that as well. आपको as a man इतना confident होना चाहिए कि आप कहें absolutely ये right डालो. Because मुझे पता है कि मुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है. I'm a fair person. मैं बहुत, I'm a good human being. मैं क्यों किसी लड़की के साथ ज़्यादती करूँगा? And I would love for men to protect their wives, their, significant others and say कि, बिल्कुल डालो तुम इसमें because I'm confident कि मैं तुम्हें ये मौका नहीं दूंगा कि तुम इस तरह की situation में आओ. दैट इज सच अ गुड थॉट कि वही है कि तुम डालो और क्योंकि कभी ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं मैं तुम्हें कभी मौका ही नहीं दूंगा कि तुम ये करो. तो दैट इज सच अ हार्ट वार्मिंग फीलिंग कि Absolutely. अगर ये हमारे मर्द आगे बढ़ें ये करें कितना अच्छा हो जाएगा. मर्दों के पास प्रिविलेज है हमारे कल्चर में और बहुत सारे मर्द अब मैं देखती हूँ उस प्रिविलेज को बड़े पॉजिटिव तरीके से यूज कर रहे हैं एंड आई वांट टू एक्नॉलेज दैट बिकॉज अब जो बहुत सारे मेन जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ है जो 30s में हैं जो यंग अडल्ट्स हैं दे आर कंप्लीटली डिफरेंट सो आई रियली वांट कि आप नोटिस करें कि सब आदमी एक जैसे नहीं होते नहीं एवरी होता. मैन इज डिफरेंट एंड आप अच्छे और बुरे और इसी तरह सब औरतें एक जैसी नहीं होती. आई विश आई कुड से सारी लड़कियां सारी औरतें ब्यूटिफुल इंटेंशंस हैं और बहुत गुड गर्ल्स हैं बट नहीं है अनफॉर्चुनेटली. This is also something that needs to be recognized. Zainab, I have like 4 more minutes, so I want to make sure कि आप कोई और सवाल हो तो मुझसे जरूर पूछें. इतना मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. But I do have I have to go back to work in 3 4 minutes. I सॉरी. have sessions. मेरे therapy sessions शुरू हो जाएंगे. We just got so lost in the time. I just, time flew by और मैं अब notice कर रही हूँ. We have prolonged this. ये तो 40 minutes I think we have talked over. I think हाँ. बस मेरा एक अपना personal question है फिर I'm just gonna jump to the audience question. If you can answer this very briefly कि जो हमारी जो mothers होती हैं especially single mothers या फिर मैं अपने घर की सिचुएशन को आगे लेके आऊँ वे ऑफन पुट themselves लास्ट कि जैसे अगर खाने की टेबल पे कुछ खाने के लिए जैसे एक रोटी कम पड़ गई वो अपनी हिस्से की रोटी आगे दे देंगी कि तुम दो खा लो मैं नहीं खाऊंगी. अपने आप को काफ़ी दफ़ा पीछे रखती हैं कि माई हस्बैंड गेट्स बेटर माई चिल्ड्रन गेट बेटर. तो how would you advise कि they should practice self care and it's so crucial क्योंकि मदर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर देम टू प्रायोरिटाइज देयर मेंटल वेल बीइंग. ब्यूटीफुल क्वेश्चन और इसके दो पहलू हैं दोनों के बारे में मैं बात करूंगी. पहला पहलू है कि देखें कि ये जो चीज होती है ना मॉम जब अनलेस यू बिकम अ मदर माय मदर हैड सेड द सेम टू मी कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा जब तक तुम माँ नहीं बनोगी. आई विल टेल यू कि एज अ मदर इट इज अ प्लेजर टू गिव अप योर रोटी और योर मील फॉर योर चाइल्ड. ये इसमें जो एक वार्मथ एक मदर फील करती है इज ब्यूटिफुल. बट दैट डजेंट मीन कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है और उसको सारा वक्त भूखा रहना चाहिए. सो इसमें बैलेंस बहुत जरूरी है. सो मदर्स को मैं कहूंगी कि आपने अपना ऑक्सीजन मास्क पहनना है बिकॉज अगर आप अपना ऑक्सीजन मास्क नहीं पहनेंगी तो आप दो गलतियां कर रही हैं. एक गलती आपकी ये है कि आप मॉडल कर रही हैं. देखें वी ट्रेन अदर पीपल हाउ टू ट्रीट अस. तो आप मॉडल कर रही हैं कि मुझे मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं मैं वैल्यूबल नहीं हूं. और दूसरा ये है कि आप अपनी बेटियों को सिखा रही हैं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है. सो ये बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे हमारे लेक्चर्स से नहीं सीखते वो हमारे बिहेवियर से सीखते हैं. चिल्ड्रन डोंट डू एग्जैक्टली व्हाट वी से दे डू व्हाट वी डू. तो आप अपने आप को बिहेवियर होता है. सो आपने एज अ मदर आपने ये सोचना है कि मेरा हर बिहेवियर मेरा बच्चा नोटिस कर रहा है. अगर मैं और एज अ कपल एज अ मच्योर कपल आपने सोचना है एज अ मच्योर मैन आपने सोचना है कि मैं अगर अपनी बीवी को अच्छे से ट्रीट करूंगा तो मेरा बेटा अपनी बीवी को अच्छे से ट्रीट करेगा बिकॉज वो घर में यही देखता आ रहा है. I've talked to couples जहाँ पे husbands अपनी wives के कपड़े इस्त्री कर रहे हैं. And I asked the husband के this is very unique for Pakistan.
And he goes, अच्छा मुझे तो नहीं पता because मेरे अब्बा भी करते थे because my mother used to work Allah, and you know so कभी कभार cute. जब help की जरूरत होती थी तो वो भी कर लेते थे तो मुझे कोई problem नहीं है. And I was so fascinated कि wow, you know इतनी सी एक modeling हो गई तो Yeah. किसी की कितनी प्यारी सी शादी, you know it's such a small thing. बट Hmm. अगर कहीं पे ये मैसेज है कि ये तो मर्दों का काम नहीं है तो इट Hmm. साउंड्स वेरी डिफरेंट, राइट? सो Yeah. मदर्स से मैं ये कहूंगी कि आप अपने आप का सेल्फ केयर करें. कभी कभार Hmm. ना कहना बहुत जरूरी होता है और Hmm. कभी कभार अपने आप को रिमूव करना फ्रॉम द सिचुएशन जरूरी होता है ताकि आपकी कदर हो, कि आपकी एब्सेंस फील हो, कि जब Hmm. मम्मी घर में नहीं होती तो खाना किस तरह ऑर्गेनाइज होता है और घर किस Yes. तरह चलता है और Yeah. डिजास्टर कैसे हो जाता है, because the queen of the ship is not available. So I know that mothers हमारे कल्चर में और ग्लोबली एक बहुत प्यारा रिश्ता है, लेकिन a lot of times you're right कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये रेस नहीं है, ये मैराथन है. और मैराथन में ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी होता है बिकॉज तो लाइफ लॉन्ग चलता है. That is so true, and that was such a beautiful message. Yes, yeah, situation. I'm not a mother yet, obviously, but देखते हैं what happens in the future because मेरी तो modeling हो रही है कि my mom is like, you know, you eat this, I'm not gonna eat this, and I'm like, you just wanted this. अब मैंने एक दफा उसकी तरफ देख लिया, आप मुझे क्यों दे रही हैं? तो वही चीज आ जाती है. Let's see how future unfolds, and that's a beautiful message for all the aspiring mothers and न्यू वाइफ्स कि वो जाएं और इस तरह वो अपना बिहेवियर कैसे आगे वो कर सकती हैं. अब द थिंग इज कि मेरे पास कुछ ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं. कैन वी मूव टुवर्ड्स दैट? Actually, I have a session. So unfortunately, I have to say goodbye. हमारी बहुत सारी मजेदार बातें and I hope maybe in the coming month we can do this again. वी और हम जो कैन. हैं वो questions answer कर लें. I would love to do that, but unfortunately मैंने सिर्फ 1 घंटा ही commit किया था and you know my day is packed with sessions. So I so appreciate अल्लाह. you taking एंड time. आई एम सो हैप्पी और दैट यू ज्वाइन. I'm so happy that you joined. अभी हमारे स्टार्टिंग का टाइम हो रहा है and a lot of people would be leaving. Even after I share this, people would be leaving और फिर जा रहे होंगे उस पे. So I just want to continue talking to you out of my own benefit. जितना मैं सीखने को मिल रहा है मुझे and ये जो इतने सारा fun insights मैंने I kept my book and I wrote so much in it. मैं अपने उसके लिए लिखे जा रही हूँ. I And so appreciate you, Zainab, and it was so refreshing talking to you. Maybe in a month or so, or in a few weeks, we can we do this will again. और आप schedule this. अपने questions के साथ बिल्कुल बिल्कुल. And you know, a lot of मैं times when I prepared commit आऊँगी this time, I want to be bombarded with questions ताकि जितनी मैं जो भी share कर सकूं जिससे किसी को 2 मिनट की भी relief मिले. It's a big blessing. I will And thank do you so much for this. having me. Thank you so much for joining. You're above 2 minutes, but I'm just gonna quickly say thank you so much for joining. It was lovely to have you, and inshallah, if we can do this again, inshallah, coming week में let's do it. Yep, if not, you're a businesswoman. Absolutely. We In the will next do 10 this days in the or month. so, बिल्कुल. Yes, ईद ईद के बाद वाला जो मंडे है, we can absolutely attempt for we that. can do it. I'm just gonna get some more questions और मैं proper एक list बनाऊंगी. And you will be quite busy फिर. बिल्कुल. You'll be like, oh my god, what to answer, what not to answer. It's an It's gonna be honor, a it's lot. a pleasure if I can be of any help. Take care and Thank you inshallah we will so talk soon. much. Allah Hafiz. Okay. Thank Allah you. Take care. Hafiz. Bye.